ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਥਰਡ ਲਾਅ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਲਾਅ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੀਅਲ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਥ ਦਾ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਡਿਊਸ ਫਰੋਮ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲਾਅ ਤੋਂ ਡਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ma। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਫ ਨੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਔਨ ਬੋਡੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਜੇ F 0 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ma। ਇਫ ਨੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਸ 0, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ma। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ m ਗੁਣਾ a। ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ 0 ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਈਦਰ ਮਤਲਬ ਜਾਂ m 0 ਹੈ ਔਰ a 0 ਹੈ। ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 0 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 0 ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦਾ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਸ ਆਫ ਏ ਬਾਡੀ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ 0 ਹੈ? a 0 ਹੈ। a 0 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 0। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ 10 ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਬਾਡੀ ਇਫ ਨੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਬੋਡੀ ਐਟ ਰੈਸਟ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਐਟ ਰੈਸਟ। ਵੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਾਡੀ ਰੈਸਟ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਸਟ 'ਚ ਰਹੂ। ਅਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0 ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਬਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਇਫ ਏ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਫ ਏ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਰੈਸਟ ਔਰ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਡੂ ਸੋ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅਨਟਿਲ ਸਮ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਡੂ ਨਾਟ ਐਕਟ ਅਪੋਨ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ? ਹੁਣ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਇਹ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਰਹੂਗੀ ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ, ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦਾ ਸਟੇਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਲਾਅ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੈਂਸ ਫਸਟ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਕੰਟੇਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਕੰਟੇਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਲਾਅ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ ਫਸਟ ਅਤੇ ਥਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਉਹ 'ਚ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ A ਅਤੇ B, ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰ ਗਈਆਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ। A ਲਗਾਊਗੀ ਫੋਰਸ B ਦੇ ਉੱਪਰ, B ਲਗਾਊਗੀ A ਦੇ ਉੱਪਰ। A ਨੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ F1 B ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਲਟਾ T ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ B ਨੇ ਲਗਾਈ
ए दे उपर F2 फोर्स डेल्टा टी टाइम वास्ते। हुण मोमेंटम जो फोर्स लगूगी तो मोमेंटम चेंज होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सैकेंड ला। जो किसी बॉडी ते फोर्स लगूगी तो मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम काहदे बराबर होगा, चेंज dp बटा dt काहदे बराबर होंदा है, फोर्स दे सैकेंड ला के अकॉर्डिंग। dp काहदे बराबर आ गया, फोर्स गुणा टाइम, इनू इधर गुणा कर दो, ठीक है। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी, हुण जो बी का मोमेंटम चेंज होया, मोमेंटम काहदा चेंज होया, बी का, किहदी फोर्स करके होऊगा, जिहड़ी फोर्स ए ने लाई है F1 किन्ने टाइम वास्ते लाई है, डेल्टा टी टाइम वास्ते। उस तरीके नाल ए का मोमेंटम जिहड़ा चेंज होऊगा किहड़ी फोर्स करके होऊगा, जिहड़ी बी ने लाई है, किन्ने टाइम वास्ते लाई है, डेल्टा टी टाइम वास्ते। टोटल मोमेंटम कितना चेंज होया, जिन्ना ए दा होया जिन्ना बी दा होया, ए दा प्लस बी दा। हुण आपां की कहा कि सिस्टम की है, आइसोलेटड है। आइसोलेटड का मतलब की हुंदा है, ठीक है। दूजी गल, आइसोलेटड का मतलब जिन्ना मोमेंटम पहला सी कोलिजन तो उन्ना ही मोमेंटम की होगा कोलिजन तो बाद होगा। एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो न्यूटन सैकेंड लॉ ऑफ मोशन, टोटल चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो। कर चुके आप कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम के, क्योंकि जो फोर्स जी है आप पहले भी मन्निया कि बाहरों फोर्स नहीं लग रही, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो मोमेंटम चेंज कितना होंगे टोटल, वो होंगे जीरो। तो F2 गुणा डेल्टा टी प्लस F1 गुणा डेल्टा टी। तो एक नूं दूजे पासे चक ले जाओ, इनू इधर चक लेना मैं F2 नूं, डेल्टा टी F1 गुणा डेल्टा टी नाल डेल्टा टी कट गया, की रह गया माइनस F2 बराबर है F1। ये की बन गया देखो ध्यान नाल कि दोनों फोर्सिस बराबर ने पर उल्ट ने, F1 इज इक्वल टू F2 माइनस लगा के, ठीक है। ये की है न्यूटन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि इफ वन बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट द सेम फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी बट इन द ओपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसे करके आप बोलते हैं कि असी न्यूटन के सैकेंड लॉ की सहायता नाल फर्स्ट ते सैकेंड थर्ड दोनों लॉ असी वो प्रूव करते। तो दैट्स वाई न्यूटन सैकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। अगे आ गया थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ नूं असीं फर्स्ट तो भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहता कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम इन विच बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। मान लो एक सिस्टम है जिस एक किताब टेबल पर पई है। हुण आपां पहलां भी ये गल कर चुके हैं, वेट ऑफ द बुक एक्टिंग ऑन द टेबल। हुण वेट जिहड़ा हैगा बुक का टेबल के उपर लग रहा है, जिन्हों आप बोलांगे एक्शन। सपोर्टिंग फोर्स ऑफ द टेबल ऑन द बुक, तो बुक टेबल वो बदले की ला रहा है, हुण टेबल है, टेबल के उपर एक बुक पई है, बुक का वेट कि पर लग रहा है टेबल के उपर, तो टेबल बुक से की लगा रहा है रिएक्शन। कहना एज अ सिस्टम इज एट रेस्ट, पर हुण किताब की है रेस्ट च पई है तो रेस्ट च है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मस्ट बी जीरो। Thus, resultant of the two forces of action and reaction will be zero only when they are equal and opposite। हुण देखो कहना रैसट च पई है, यदा मतलब मोशन की हो गया तो जीरो हो गया। मोशन जीरो कदों होगा, हुण फोर्सिस तो दो लग रही ने, एक नीचे लग रही है एक ओपोजिट नूं, पर बॉडी हले भी रैसट च पई है। यदा मतलब दोनों फोर्सिस बराबर ने पर की ने ओपोजिट ने एक दूजे दे। सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हैंस थर्ड लॉ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। दोबारा फिर कि बुक जी है टेबल के उपर पई है, तो टेबल बुक का वेट टेबल के उपर लग रहा है, तो बदले टेबल की लगा रहा है बुक तो रिएक्शन लगा रहा है। एक्शन नीचे हो गया, रिएक्शन उपर हो गया, पर क्योंकि बुक काहदे विच पई है रैसट च पई है, तो यदा मतलब फोर्सिस लगन के बावजूद बुक काह च पई है रैसट च पई है। यदा मतलब दोनों फोर्सिस की ने इक्वल ने, तो दोनों की ने ओपोजिट ने। सो दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो उम्मीद है थोड़ा ये टॉपिक है समझ आ गया होना। इस तो बाद साडे कोल जिहड़ा अगला टॉपिक है वो है कनैक्टड मोशन। कनैक्टड मोशन आ सिस्टम देखो तुसीं ध्यान नाल, इस सिस्टम च की किता होया है, हुण इह च की है दो बॉडीज़ कनैक्ट ने आपस दे नाल एक रस्सी दे नाल। दो बॉडीज़ ने, एक आ वाली बॉडी है एक आ वाली बॉडी है, ये दोनों बॉडी एक रस्सी दे नाल आपस च जुड़ियां होईयां ने एक पुली दे उपर दी।
जिवें खूह दे विच एक पुली हुंदी है, ठीक है, उहदे वांग एक पुली है, उहदे उपर दी दो बॉडीज़ ने, तो ये कनैक्टड मोशन है, मतलब कल्ला एक बॉडी कल्ली मोशन नहीं करूगी, जे एक करूगी तो नाल दूजी भी करूगी। कंसीडर करो टू बॉडीज़ ने, एक का मास M1 है, सैकेंड का M2 है, टाइड एट एंड्स ऑफ एन इस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, कि दो बॉडीज़ ने, एक का मास M1 है, एक का मास M2 है, एक ना लफणयोग जिहड़ी खिंची नहीं जा सकती, मतलब लफदी नहीं, लंबी नहीं हुंदी, रस्सी दे नाल बन्ने हुए ने ओवर ए लाइट पुली, लाइट एंड फ्रिक्शनलैस पुली। ये कंडीशन है कि एक पुली का मास नहीं है, दूजा फ्रिक्शन नहीं हैगी, क्योंकि फ्रिक्शन मतलब एक्सट्रा फोर्स लगूगी नहीं। लैट कर मान लो कहता M1 की है M2 तो ज़्यादा है, हम देखो M1 मास ज़्यादा है, M2 घट है, तो नॉर्मली जी गल है, जिहदा मास ज़्यादा वो नीचे नूं आ जाऊगा, तो हैवी बॉडी किधर नूं मोशन करूगी, देखो नीचे नूं करूगी, डाउनवर्ड मोशन करूगी, तो लाइटर बॉडी किधर नूं करूगी, अपवर्ड मोशन करूगी उपर नूं। जिहड़ी भारी है, हुण ये पुली है, पुली घुम सकती हुंदी है, ठीक है, भारी चीज़ नीचे नूं आऊगी, हल्की चीज़ उपर नूं जाऊगी। तो हुण देखो जिन्ने एक्सलरेशन दे नाल ये नीचे नूं आऊगी, उन्ने एक्सलरेशन दे नाल उपर नूं जाऊगी। ये नहीं है कि ये तेजी नाल नीचे आऊ, ये हौली उपर नूं जाऊ, इस तरह नहीं होना। ये दोनों का मोशन आपस में कनैक्टड है, एक दूजे नाल जुड़िया होया है। जिन्ने एक्सलरेशन नाल ए एक्सलरेशन नाल नीचे नूं आना, इन्हें ए एक्सलरेशन नाल उपर नूं जाना। सिंस कहता पुली इज लाइट एंड फ्रिक्शनलैस, देयरफॉर द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी सेम ऑन द बोथ साइड। हुण देखो आ रस्सी जिहड़ी हैगी पुली दे उपर दी लंघ रही है, हुण इस तरह मन के चलो भी ये रस्सी इस पुली दे नाल बन्नी हुई है, तो जदों भी खिच इस रस्सी दे विच की पैगी, खिच पैगी, खिच नूं की बोलदे ने टेंशन, अखर किहड़ा लिखिआ टी, इस तरीके नाल खिच इहदे विच भी पऊगी टी। तो दोनों पासे रस्सी, क्योंकि रस्सी भी सेम है, इक्को मटीरियल की बनी हुई है, सेम रस्सी है, तो दोनों पासे टेंशन की होगी, सेम पैदा होगी, ठीक है। ऑन द हैवीयर साइड हुण इधर किहड़ियां फोर्सिस लग रही ने, देखो तुहानूं पहलां भी दस्सिआ कि एक तो फोर्स हुंदी है बॉडी का वेट, पहली फोर्स है बॉडी का वेट इधरली का M1G, वेट काहदे बराबर हुंदा है W, W इज इक्वल टू मास गुणा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी, मास गुणा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी। तो ये वेट हुंदा हमेशा नीचे नूं, टेंशन जिहड़ी पैदा होगी रस्सी च, ये हो रही है उपर नूं। ये किधर नूं हुंदी है टेंशन की डायरैक्शन याद रखनी है, जिधर नूं रस्सी जुड़ी होवे या बन्नी होवे, ठीक है। तो दो फोर्सिस ने लग रही ने M1 ते एज बॉडी। हुण देखो एक फोर्स नीचे नूं लग रही है, एक फोर्स उपर नूं लग रही है, पर बॉडी दो फोर्स लगण दे बावजूद नीचे नूं आ रही है, दो फोर्सां दी डायरैक्शन की है ओपोजिट है। हुण इहदा मतलब तुहाडे दिमाग च की आया कि जिहड़ी नीचे नूं फोर्स लग रही है वो ज़्यादा है, जिहड़ी उपर नूं लग रही है घट है, तां ही बॉडी नीचे नूं आऊगी। जे ये दोनों फोर्सिस बराबर हुंदियां तां बॉडी नीचे नूं आउंदी नहीं। कहना एज बॉडी मूव डाउनवर्ड विद एक्सलरेशन ए, हुण बॉडी जिहड़ी हैगी है वो ए एक्सलरेशन दे नाल नीचे नूं आ रही है, इहदा मतलब एक नीचे नूं नैट फोर्स लग रही है, एक नीचे नूं नैट फोर्स, दो फोर्सिस नूं घटा के कुछ ना कुछ पिछे बच रहा है, वो कितना बचूगा वो देखो, फोर्स विचों फोर्स घटावांगे तो आंसर की आऊगा फोर्स, ठीक है। हुण एक फोर्स नीचे नूं है W1, माइनस उपर लग रही है, माइनस क्यों किया क्योंकि उल्ट डायरैक्शन च है, तो कोई फोर्स बच रही है, फोर्स माइनस फोर्स, वेट भी फोर्स हुंदा है, तो यह है M1G माइनस T। हुण फोर्स कितनी बचूगी, जिन्ना मास है गुणा जिन्ने एक्सलरेशन नाल नीचे नूं आ रही है बॉडी, जिहड़ी फोर्स बची वो कितनी होगी, न्यूटन के सैकेंड ला तो M गुणा A मास इंटू एक्सलरेशन। हुण दूजे च देखो दूजी बॉडी लाइटर है, वो उपर नूं जा रही है, ये उपर कितनी फोर्सिस लग रही हैं, ये उपर भी दो लग रही ने, एक M2G नीचे नूं लग रही है, एक टेंशन उपर नूं लग रही है, पर बॉडी की हो रही है उपर नूं जा रही है, उपर नूं जा रही है। इसदा मतलब उपर नूं जिहड़ी फोर्स लग रही है वो ज़्यादा है, जो नीचे नूं लग रही है वो घट है, दोनों नूं घटा के एक फोर्स बचूगी कितनी, M2 गुणा A, ठीक है। हुण इन्हां दोनों इक्वेशनां नूं की कर दो, ऐड कर दो, जोड़ दो, तो जो आप जोड़ांगे तो की होगा, देखो M1G माइनस T प्लस T माइनस M2G बराबर है M1A प्लस M2A, T प्लस का T माइनस का कैंसल हो गया, M1G ये मूरे माइनस है, M2G इत्थों A साझा है दोहां चों, M1 प्लस M2,
ठीक है। इत्थों G साझा दोहां चों, तो M1 माइनस M2 A M1 प्लस M2, तो अपने कढ़ना की है A की वैल्यू कढ़नी है, तो G M1 माइनस M2 M1 प्लस M2, तो इत्थों साडे कोल की निकल गया A निकल गया। हुण जे तुसी इस इन्ने पोर्शन ते निगाह मारो, इन्ने पोर्शन ते उपर की है M1 माइनस M2, नीचे की है M1 प्लस M2। मान लेने आपां तुहानूं समझाउण वास्ते कि M1 का मुल हैगा जी 5, M2 का मुल हैगा जी 3। हुण देखो की होऊगा, G 5 माइनस 3 5 प्लस 3 A, 5 माइनस 3 2 बटा 8 A, 1 बटा 4 G गुणा 1 बटा 4 A, यानी कि G बराबर है 4A ਜਾਂ A बराबर है G बटा 4। इन्हां दोनों गल्लां नूं ही देखो, G बराबर है 4A मतलब G A तो 4 गुणा है, तो किहड़ा वड्डा होया, A वड्डा होया कि G वड्डा होया। इत्थों देखो A बराबर है G बटा 4, ठीक है। दोनों गल्लां सेम ही ने, दोनों च फर्क नहीं, दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है। G बराबर है 4 गुणा A या A बराबर है G बटा 4, ये दोनों गल्लां एक ही चीज़ साबित कर रही ने कि G जिहड़ा हैगा वो A नालों 4 गुणा वड्डा है। जे अपने आ मन्निया तां ये सिर्फ मैं तुहानूं समझाउण वास्ते लिया, होर कुछ नहीं। मतलब ये फार्मूला सानू की दसदा है, ये फार्मूला सानू ये दसदा है उपर अखर छोटा है नीचे अखर सेम अखरां उपर माइनस है नीचे सेम अखरां का जोड़ है। यदा मतलब जिहड़ा उपरले वाले पासा है छोटा है निचले वाले पासा वड्डा है। जो उपर अखर छोटा होवे नीचे अखर वड्डा बनता होवे तां जिहड़ा जिहदे नाल उहनूं गुणा करांगे दैट मीनस ये बराबर वाले नालों वड्डा हो गया। ये कहदा G जिहड़ा हैगा वो A नालों की है ज़्यादा है। ये रिलेशन सानू ये दसदी है कि G है जिहड़ा वो एक्सरलेशन ड्यू टू ग्रैविटी वो ए एक्सरलेशन जिहड़ा पैदा होया जी जिहदे नाल धरती की खिच करके पैदा होया, ए उन्हां दे उपर जां नीचे जाण नाल जिहड़ा एक्सरलेशन पैदा होया ओह, ठीक है। तो ए छोटा है जी की है वड्डा है। हुण जे आपां की करिए, पहलां इन्हां ने आपां ने इन्हां इक्वेशनां नूं जोड़िया सी दोनों इक्वेशनां नूं, हुण आपां इन्हां दोनों इक्वेशनां नूं की करदे हां डिवाइड कर दिंदे हां। डिवाइड देखो की होऊगा फिर M1A M2A M1G माइनस T माइनस M2G, A नाल A इत्थों की हो गया कैंसल हो गया। उस तो बाद साडे कोल की बच गया हुण इत्थे बच गया M1 बटा M2 बराबर है M1G माइनस T माइनस M2G, ये चीज़ बच गई। हुण कर दो तुसी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसनूं इस नाल कर दो, इसनूं इस नाल कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो की बनूगा M1T माइनस M2G M2 M1G माइनस T, तो M1T माइनस M1 M2G M1 M2G माइनस M2T, ठीक है। ये चीज़ बन गई। हुण आपां कढ़ना की है, टेंशन कढ़नी है, तो T वाले एक पासे रख लो, M1T इधर पे है इधरों चक लियाओ इस पासे, इधर माइनस का सी इधर आके की हो जाऊगा प्लस का, परले पासे की बच गया उधर M1 M2G पहले लिखा होया है, इसनूं चक के इधर ले आओ, इधर माइनस का सी इधर आके प्लस का हो जाऊगा M1 M2G। हुण T इधरों साझा आ गया, इत्थों दोवां चों बच गया M1 प्लस M2। इत्थे देखो की है M1 M2G M1 M2G, ਇਹਦਾ मतलब बन गया 2M1 M2G x प्लस x 2x, ठीक है। दोनों सेम ने, तो जो दोनों जोड़ांगे तो मूरे की लग जाऊगा 2 लग जाऊगा, तो कढ़ना की आपां T 2M1 M2G बटा M1 प्लस M2। सो इत्थों साडे कोल की निकलिया जी, टेंशन जिहड़ी रस्सी च पैदा हुई उहदी वैल्यू जिहड़ी हैगी असीं ओह कैलकुलेट इत्थों कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है तुहानूं जिहड़ा ये आर्टिकल है वो चंगी तरह समझ आ गया होना। नहीं पता लग्या तो वीडियो नूं दोबारा चला के देख लियो, ठीक है। अगे साडे कोल हैगा सिस्टम विद वेरीएबल मास आर रॉकेट।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा समझना है। ਹੁਣ देखो जो रॉकेट कोई भी रॉकेट है, जिमें ਆਪਾਂ ਨੂੰ रॉकेट दिखाया गया है, ठीक है, रॉकेट है ये अपने को। तो जो रॉकेट चढ़ूगा पहला वो की है, ਉਹਦੇ 'ਚ फ्यूल ਜਿਹੜਾ फुल होगा, ठीक है, फ्यूल की मात्रा जी हैगी वो फुल होगी। ਜਦੋਂ रॉकेट चल पिया ਉੱਪਰ जाऊगा, जिमें जिमें ਉੱਪਰ जाऊगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ फ्यूल की मात्रा है की होगी, वो नॉर्मल जी गल है, आपको पता सब नूं की होगी कि वो घटूगी। फ्यूल की मात्रा किने होना, हौली हौली घटदियां ने। तो पहला मास की है, ज़्यादा है, फिर जो मास है वो घट है, अगला जो मास है वो होर घट जू। तो जिमें जिमें फ्यूल ने बरंट होई जाना, मास टोटल मास जो वो की होगा, घटी जाऊगा। तो जो टोटल मास घटी जाऊगा तो अपने को एफ इज इक्वल टू एम ए है, ए इज इक्वल टू एफ बटा एम। हुण फ्यूल ने जल के फोर्स तो उन्नी ही पैदा करनी है, पर जिमें जिमें एम घटी गया तो ए की है वो वधी जाऊगा। एक्सलरेशन की जी वैल्यू की है वधी जाऊगी, मतलब रॉकेट की स्पीड की हो जाऊगी, वो तेज़ हो जाऊगी। वो विलोसिटी है जी, जिमें जिमें फ्यूल बरंट होंदा जाऊगा उवें उवें विलोसिटी वो इनक्रीज़ होंदी जाऊगी। बस आपने इत्थों यही याद रखना है। कहना अकॉर्डिंग टू द प्रिंसीपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम ऑफ मास m of rocket at instant t must be equal to the vector sum of the linear momentum of the rocket mass m minus dm moving with the velocity v plus dv and linear momentum of the mass dm of exhaust gases moving with the downward velocity vg। की मतलब देखो, जे कहता पहला मास कितना है, टोटल मास m है, कितनी वेलोसिटी नाल जा रहा है, v नाल। थोड़े टाइम बाद ये dm मास की हो गया, घट गया, तो वेलोसिटी की होगी यदी बढ़ गई। जिन्ना मास घटिया है उन्ने मास दियां की निकल गई बाहर, गैसां निकल गई, ठीक है। किन्नी वेलोसिटी नाल, डी नाल, पर माइनस नाल, क्यों, क्योंकि नीचे नूं ने ओपोजिट ने पुट्ठी जा रही ने। तो टोटल मोमेंटम किन्ना पहला एम वी, बाद दे किन्ना एम माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी प्लस डी एम गुणा माइनस डी वी। इस तरह कह रहा है कि टोटल मोमेंटम रॉकेट का चढ़न तो पहला तो किसी भी समय जो वो चल रहा है वह टोटल मोमेंटम उन्ना ही है जिन्ना कि चढ़न तो पहला सी जां चढ़न दे कुछ समय बाद सी, क्योंकि जिन्ना मोमेंटम नाल उपर मास घटी जाऊगा वेलोसिटी बढ़ी जाऊगी, पर नीचे नूं निकलण वालियां गैसां दा मास बढ़ी जाऊगा तो वेलोसिटी उन्नी रहूगी, ठीक है। तो ये सानूं सिर्फ समझना है कि ये वेरीएबल सिस्टम है, भी यह है सिस्टम विद वेरीएबल मास, कि ये मास जोड़ा है वो कॉन्सटेंट नहीं रहता है। हुण तक आप जिन्ने भी सिस्टम पढ़े ने वो अपने एक चीज़ का मास एम मान लिया तो आप शुरू अंत तक एम मान के चलते हैं, पर हमेशा हर एक सिस्टम इस तरह नहीं होंदा कि मास कॉन्सटेंट ही रहे। अगला जो साडा टॉपिक करने वाला है इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सिस। तो पहले तो शब्द आया कनकरेंट फोर्सिस, इक्विलिब्रियम बाद च करते हैं, पहले कनकरेंट फोर्सिस की होंदियां ने। तो जी डेफिनेशन लिखी है फोर्सिस विच आर एक्टिंग एट ए सेम पॉइंट आर कॉल्ड कनकरेंट फोर्सिस, कि जिहड़ियां फोर्सिस एक पॉइंट ते लग रही होण, चाहे 2 ने चाहे 3 ने चाहे 10 ने, उन्हां फोर्सिस नूं आपां की बोलांगे, कनकरेंट फोर्सिस बोलांगे। जिवें मैं कहा कि का पॉइंट है, ये पर एक फोर्स F1 लग रही है, एक F2 लग रही है, एक F3 लग रही है, एक F4 लग रही है। डायरैक्शन कोई भी हो सकती है ना, कोई बाहर नूं कोई अंदर नूं। तो आ जिन्नियां भी फोर्सिस एक पॉइंट ते लग रही ने इस पॉइंट ते F1 F2 F3 F4 दीज आर कॉल्ड कनकरेंट फोर्सिस, मतलब जिहड़ियां फोर्सिस एक पॉइंट ते लग रही होण। फिर आ गया अगला शब्द इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सिस। इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल इन मैकेनिक्स रेफर्स टू द सिचुएशन वैन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। हुण इक्विलिब्रियम का मतलब की है, कहता कि मैकेनिक्स के जिहड़ा मैकेनिक्स जी फिजिक्स की ब्रांच है वो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जिन्नियां फोर्सिस लग रही ने सारियां फोर्सिस का नैट इफैक्ट है जिहड़ा वो जीरो है। किवें आपां समझदे हां,
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾ ਦਿਸ ਮੀਨ ਦੈਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੁੱਡ ਬੀ ਆਈਦਰ ਐਟ ਰੈਸਟ ਔਰ ਇਨ ਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅ ਬॉडी ਇਨ ਦ ਰੈਸਟ ਔਰ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਡੂ ਸੋ ਅੰਟਿਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਲਡ ਬਾਏ ਸਮ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬॉडी ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਸਟ 'ਚ ਰਹੂਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਨਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸਿਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 1 2 3, F3 F1 F2। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਨਕਰੈਂਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 10 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ, ਨਾ ਮਾਤਰਾ ਬਦਲਦੀ, ਨਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਬਦਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਬॉडी ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਜੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ, ਤਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਬॉडी ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ 5 ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਤੇ 5 ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 5 ਡੱਡੂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ 5 ਡੱਡੂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਪਰ ਕਾਰ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਤਾਂ ਲਾਏ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, F1 F2 F3। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਨੇ F1 ਅਤੇ F2, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਡਾਇਗਨਲ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਗਨਲ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ FR। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, FR ਅਤੇ F3 ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ FR, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆਹ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, FR ਮਾਈਨਸ F3 ਬਰਾਬਰ 0। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ FR ਅਤੇ F3 ਕੀ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣ, ਐਂ 4 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂ 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂ 7 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਐਂ 10 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਵੇ, 0 ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਲਗਾਤਾ, OA ਅਤੇ OB ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, OC ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ
OA प्लस OB प्लस OC ਨੂੰ OA OB प्लस OC ਨੂੰ ਤਾਂ OA ਤੇ OB ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ OC ਡੈਸ਼ प्लस OC। ਹੁਣ OC डैश ਤੇ OC ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੋजिट ਨੇ ਉਲਟ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਯਾਨੀ ਕਿ F1 प्लस F2 प्लस F3 ਬਰਾਬਰ ਕਾਹਦੇ ਆ ਗਿਆ 0 मतलब ਤਿੰਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ F1 F2 F3 ਆਰ ਇਨ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਚ ਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਨੇ F1 ਤੇ F2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ F3 ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਓਪੋजिट ਹੈ। इसी तरीके नाल साडे कोल N फोर्सिस भी हो सकदियां ने N ठीक है जां इन्हां फोर्सिस नूं एवें आपां ट्रायंगल ला लगाता देखो ट्रायंगल ला F1 उमी रख ली F2 नूं इत्थे बनाता क्योंकि ट्रायंगल ला च की लैंदे हुंदे आ पैरेललोग्राम दे विच तां आपां ऑर्डर दा कोई चक्कर नहीं हुंदा ट्रायंगल ला दे विच की हुंदा सेम ऑर्डर दो साइडां सेम ऑर्डर थर्ड साइड की हुंदी है ओपोजिट ऑर्डर तो पहला F1 भी रख लिया F2 ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਦਲਿਆ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ F3 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ ਹੁਣ F2 ਤੇ F1 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਇਨ ਓਪੋजिट ਆਰਡਰ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਇਨ ਓਪੋजिट ਆਰਡਰ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ ਓਪੋजिट ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ कैंसल करता मतलब टोटल आंसर कितना आ गया 0 तो जिन्नियां मर्जी फोर्सिस होण F1 F2 F3 अप टू FN जेकर उन्हां सारिਆਂ ਦਾ जोड़ की है 0 है या नैट इफेक्ट 0 है तो आप बोलांगे कि की ने ये फोर्सिस इक्विलिब्रीਅਮ च ने ठीक है जी। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF मैं भेज चुकिया नैक्सट PDF भेज दूंगा तो नैक्सट नाले वीडियो भेज दूंगा तो इनू चंगी तरह कर लो याद कर लो नाल याद करन दा काम नाल नाल करी चलो बाद दे विच जिहड़ा काम थोड़ा वध जाऊगा। थैंक यू बेटा।